ایک جنگل میں دو بہنیں ٹنٹن اور سونی رہتی تھیں۔ وہ دونوں یتیم تھیں۔ ان کے والدین کافی عرصہ پہلے مر چکے تھے۔ ایک دن وہ دونوں پڑوس میں کھانا مانگنے جا رہی تھیں، تبھی انہیں ایک سیب بیچنے والا نظر آتا ہے۔ مزید آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ سیب لے لو، سیب، کشمیری تازے سیب، میٹھے میٹھے سیب لے لو۔ دیدی وہ دیکھو نا، سیب بیچنے والا آیا ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، ایک سیب خرید دو نا۔ کیسے خرید تو سیب سونی؟ سیب والا بنا پیسوں کے سیب نہیں دے گا، تو ضد مت کر، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپی ایک بار میری خاطر اسے سیب مانگ کر دیکھو نا، شاید آپ کو دے دے۔ اپنی بہن کی بات مان کر ٹنٹن سیب والے کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے، انکل مجھے ایک سیب چاہیے۔ یہ لو، ایک دم تازہ اور میٹھا سیب۔ اس ایک سیب کا صرف تمہیں 10 روپے دینا ہوگا۔ ٹنٹن اداس ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، لیکن انکل میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میرے ماما بابا کچھ عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں، میری چھوٹی بہن کو بھوک لگی ہے، وہ سیب کھانے کی ضد کر رہی ہے، انکل پلیز ہمیں ایک سیب دے دو نا۔ اتنا کہہ کر ٹنٹن وہاں سے جانے لگتی ہے کہ سیب والے کو ٹنٹن اور سونی پر رحم آ جاتا ہے۔ یہ لو بیٹا سیب، تمہیں اس کے پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ٹنٹن اس سیب کو سونی کو دے دیتی ہے۔ وہ سیب کو غور سے دیکھنے لگتی ہے۔ ارے پاگل، تو اسے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہے؟ تجھے بھوک لگی ہے تو کھا اس کو۔ میں اس کو نہیں کھاؤں گی آپی، میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے، وہ جو ہمارے گھر کے پیچھے زمین ہے، کیوں نہ ہم اس کو وہاں بو دیں، پھر وہاں ایک بڑا درخت اگے گا اور اس پر بہت سارے سیب ہوں گے، پھر ہم اسے توڑ کر جتنا مرضی ہو سیب کھا سکتے ہیں، اور جو بچے اسے بیچ دیں گے۔ تو بالکل پاگل ہے سونی، یہ سب صرف جادوئی دنیا میں ہوتا ہے، اصل زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن سونی اپنی بہن کی بات نہیں مانتی اور اس سیب کو مٹی میں دبا دیتی ہے۔ اگلے دن دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب ان کے گھر کے باہر بڑا سا سیب کا درخت اگاتا ہے اور اس پر بڑے بڑے سیب لگے ہوتے ہیں۔ ٹنٹن کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا۔ آپی جلد سے ان سیب کو بازار میں بیچنے چلتے ہیں۔ جب وہ سیب بیچ کر گھر آتی ہیں تو الو سیٹ ان کے گھر کا سامان باہر پھینک رہا تھا۔ الو سیٹ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے گھر کا سامان باہر کیوں پھینک رہے ہیں؟ اب سے یہ گھر میرا ہے، تیرے باپ نے مجھ سے قرض لیا تھا اور بنا دیے ہی مر گیا، چلو اب نکلو یہاں سے۔ ٹنٹن اپنی بہن کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر وہ دونوں سیب کے درخت پر بیٹھ کر رونے لگتی ہیں۔ سونی میری بہن، کیا ہو گیا؟ اب ہم کہاں جائیں گے؟ سر چھپانے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، کاش ہمارے ماں بابا زندہ ہوتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ پھر اچانک سیب کے درخت پر ایک بڑا سیب آ جاتا ہے اور اس میں سے آواز آتی ہے، بچوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے تم دونوں اس جادوئی سیب گھر میں رہو گے۔ اس سیب کو دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہو جاتی ہیں اور خوشی خوشی اس گھر میں رہنے لگتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک جنگل میں منو اور اس کی بیوی بلبل رہتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی۔ منو اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا، وہ اس کی ساری خواہشیں پوری کرتا۔ اس کی بیٹی کو پیڑ پودے اگانا بہت پسند تھا۔ مزید آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ منو کھیتی کرتا تھا، اسی سے ان کے گھر کا نظام چلتا تھا۔ ایک دن رنکو باہر کھیل رہی تھی کہ اسے اچانک ایک پودا بیچنے والا نظر آیا۔ وہ آم کے پودے بیچ رہا تھا۔ میرے گھر کے پاس بہت ساری جگہ ہے جہاں میں ان پودوں کو لگا سکتی ہوں۔ ایسے سوچ کر وہ اس آدمی کے پاس جاتی ہے۔ انکل آپ کے پاس موجود آم کے جو بھی پودے ہیں وہ مجھے دے دیں۔ آم کے پودوں کا تم کیا کرو گیٹی؟ میرے گھر کے باہر خالی جگہ ہے، میں ان پودوں وہاں پر لگاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح وہ اسے مختلف آم کے پودے دیتا ہے اور وہ انہیں لے کر گھر آ جاتی ہے۔ رنکو ان پودوں کو اپنے گھر کے پاس لگاتی ہے۔ ایک دن منو اس خالی جگہ پر آم کے پودوں کو دیکھتا ہے۔ ارے یہ خالی جگہ پر پودے کہاں سے آئے؟ اگر یہ درخت بن گئے تو ان کی جڑوں کی وجہ سے انہیں نکالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کبھی نہ کبھی مجھے اس جگہ پر گھر بنانا ہے۔ یہ سوچ کر وہ ان پودوں کو نکالنے آتا ہے، تبھی اس کی بیٹی وہاں جاتی ہے۔ پاپا آپ ان پودوں کو کیا کر رہے ہو؟
इस जगह पर एक बड़ा घर बनाना है ना बेटा। अगर ये दरख्त बन गए तो उनको निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी निकाल रहा हूँ। पापा, आपको पता है ना मुझे पौधे उगाना कितना अच्छा लगता है। पौधे उगाना एक अच्छी आदत है, इससे हमें ताज़ा हवा मिलती है। मेरे लिए इन्हें रहने दें। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए मैं इन पौधों को ही निकाल रहा। रिंकू इन पौधों का बहुत ख्याल रखती। कुछ सालों बाद वो पौधे बड़े दरख्त बन जाते हैं, बहुत सारे आम देते हैं। ये देखकर रिंकू बहुत खुश होती है। उसी साल में मन्नू की खेती में पानी ना होने की वजह से फसल नहीं आती और उसे समझ नहीं आती कि वो अपना कर्ज कैसे उतारेगा। वो परेशान हो जाता है। अरे क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं लिया हुआ कर्ज कैसे उतारूंगा। रिंकू उनकी सारी बातें सुन लेती है। मैंने जो पौधे लगाए हैं इन पर बहुत आम हैं। इनको बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं। मुझे ये बात बाबा को बतानी होगी। आप परेशान ना हो। आपकी बातें सुनने के बाद मुझे ये ख्याल आया है। क्या कह रही हो बेटी? पापा, क्या आपने देखा है कि आम के दरख्त पर कितने आम उगे हैं? पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं। पर तुम आम की बात क्यों कर रही हो? एक बार सोचे तो पापा, हम आम को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। हाँ बेटी, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। मुझे तो ये ख्याल आया ही नहीं। बसंत का मौसम सोचकर लोग पैसे ज़्यादा देंगे कि आम जल्दी आ गए हैं, इससे हमारा कर्ज भी उतर सकता है। अगली सुबह मन्नू उन दरख्तों के पास जाकर सारे आम इकट्ठे करता है और उनको लेकर बाजार में जाता है। आम आम, मीठे आम, रसीले आम। बसंत के मौसम में मुख्तलिफ किस्म के आम आने पर सभी उसके पास आते हैं। बाबू, 1 किलो आम का क्या दाम है? किलो आम 120 के हैं। ठीक है, 1 किलो दे दो। ऐसे उसकी सोच के मुताबिक जितना भी दाम हो लोग उसे खरीदते। उसके पास उसके सारे आम बिक जाने पर वो खुशी खुशी घर आता है। घर जाते ही वो पैसों की गिनती करता है। आज मेरी खेती में नुकसान होने के बावजूद मेरी बेटी की एक अच्छी आदत की वजह से मेरे पास पैसे हैं। रिंकू, रिंकू कहाँ हो? जी पापा, क्या आपने इन आमों को बेच दिया? सारे आम बिक गए बेटी, और अगर आज मेरे पास इतने पैसे हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। उस दिन मैं उन पौधों को निकालना चाहता था, अगर रुक गया तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज हमारे इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे आम के दरख्त ही काम आए हैं। ऐसे ही वो और आम बेचकर आए हुए पैसों से कर्ज उतारता है। बचे हुए पैसों से वो और बीज लाकर इन्हें बोता है। तब से वो आम के दरख्त लगाते और आम के आए हुए पैसों से एक नया आम का कारोबार शुरू करता है। वो आम बेचकर ख़ानदान के साथ खुशी खुशी रहता है। एक जंगल में एक किसान टूटू रहता था। उसने वहाँ एक आम का दरख्त लगाया था। वो उस दरख्त को हर रोज़ पानी दिया करता था और उसके आसपास बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सफाई किया करता था। उस आम के दरख्त के पास में ही एक नीम का दरख्त भी था। हर दिन टूटू आम के दरख्त की बहुत देखभाल करता था और नीम के दरख्त का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। ये देखकर आम के दरख्त को ये लगने लगता है कि वो बहुत ही ख़ास है, तो वो अपने ऊपर बहुत फ़ख्र महसूस करने लगता है। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वो दोनों दरख्त भी बड़े होते गए। आम का दरख्त बहुत खूबसूरत लगने लग गया और उस पर बहुत प्यारे प्यारे फूल आ गए। उस दरख्त के आम बहुत ही मीठे और मज़ेदार थे, जबकि नीम के दरख्त के फल बहुत कड़वे थे। उसी वजह से वो बहुत मगरूर था। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनिए आम के दरख्त, अब तो आपने बात ही करना बंद कर दी है। तब अच्छा था ना जब हम छोटे थे, इतनी सारी बातें एक दूसरे से किया करते थे। क्या करूं, मैं बेकार में नहीं बैठा रहता ना। मेरे पास बहुत मीठे मीठे फल हैं। बहुत से लोग मेरे पास फल खाने आते हैं तो मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दो। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं एक बहुत ही ख़ास दरख्त हूँ। मेरे पास मीठे और रसीले फल हैं। तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। मैं तुम जैसे दरख्त से बात करके अपना वक्त क्यों ज़ाया करूँ? अपने आप पर इतना गुरूर मत करो। मैं भी कोई फजूल दरख्त नहीं हूँ। मेरे पत्तों से बहुत सी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और इतना भी नहीं, मेरे पत्तों में, मेरी जड़ों में बहुत ही ज़्यादा खूबियाँ पाई जाती हैं और लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा करामत हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो कहा वो सच है और ये बात तो सब जानते हैं। इस तरह हर रोज़ नीम और आम के दरख्त का झगड़ा होता था।
रोज़ बरोज़ इन दोनों का झगड़ा बढ़ता गया कि मैं ज़्यादा ख़ास हूँ और मैं ज़्यादा ख़ास हूँ। इन दोनों दरख्तों के बीच में एक नारियल का दरख्त भी था जो रोज़ रोज़ इन दोनों दरख्तों का झगड़ा सुनकर कान बंद कर लेता। एक दिन उन दरख्तों का झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर नारियल के दरख्त से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो कहने लगा, उफ हो, ये क्या झगड़ा करते रहते हो तुम? क्या तुम अपना झगड़ा बंद नहीं करोगे? माफ़ कीजिए नारियल जी, आपको परेशानी होगी, पर आप देखें ना, ये आम का दरख्त हमेशा झगड़ा ही करता रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने वही किया जो सच है। वैसे भी आप सब ही जानते हैं कि हम में से कौन बेहतर है। अगर तुम बुरा ना मानोगे तो मैं ज़रूर कहूँगा, तुम मीठे फल ज़रूर देते हो। सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नीम के फल बहुत कड़वे ज़रूर होते हैं, पर इससे बहुत दवाइयाँ बनती हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि नीम का दरख्त तुमसे बेहतर है। सिर्फ तुम्हारा फैसला करने से कुछ नहीं होता, मेरे फलों का कोई जवाब नहीं, और ये बात सबको माननी ही होगी। आम के दरख्त की मगरूर बातें सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा और चुप हो गए। कुछ दिनों के बाद आम के दरख्त के सब फल ख़त्म हो गए और पत्ते और फूल गिरने लग गए और इसकी जड़ों में कीड़ा पड़ गया और वो बहुत कमज़ोर हो गया। उसके दरख्त के सारे पत्ते गिरने लग गए। ये देखकर किसान ने आम के दरख्त की जड़ों में नीम के पत्तों को पीसकर डालना शुरू कर दिया। रोज़ टूटू ने ऐसा करना शुरू कर दिया। ऐसा करने से जो कीड़ा आम के दरख्त को लग चुका था वो अब ख़त्म हो गया। फिर आम का दरख्त पहले की तरह खूबसूरत हो गया और आम के दरख्त को अपनी गलती का एहसास हो गया कि अपनी खूबियों को लेकर कभी मगरूर नहीं होना चाहिए। फिर आम के दरख्त को नीम के दरख्त की खूबियों का पता चला। फिर आम के दरख्त ने नीम के दरख्त से माफ़ी मांगी। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अपनी खूबियों पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।